So today is our 31st session of Brahma Sutras. It's chapter 3, and we are on the first section of chapter 3. So, and the the topic 3 is fate of evil doers. Those who do bad karmas in their life, what is their fate? So instead of covering it under these two topics, as is given in the Brahma Sutras, I am just going to discuss generally about the karmas and how it all happens. And there is a very interesting question which somebody asked in this connection, and that is, what is the entity against which all karma gets rewarded or punished? Is it the pure consciousness which keeps record of all the karmas? Isn't this our question? We also want somewhere deep down to understand the karma properly. How does karma function? Because you see, all the philosophies that have emerged on the Indian soil, as well as all the various offshoots of Hindu Dharma or Sanatan Dharma, like Buddhism and Jainism, they all may have other differences, but on one thing they are unanimous, and that is they all accept the karma theory, because that is the basis of rebirth. In fact, all religions talk about an afterlife after the death. Maybe in Christianity, the souls are in abeyance and they wait for the day of judgment. However, if there is no future, then there can be no religion. And here our topic is that only. So, last time we had met briefly, a few of us had met on an, individually, in a group at a personal level, which we haven't been doing for a very long time because after COVID, we had stopped meeting. But we all realized that somewhere or the other, the Gyan is helping us to deal with the problems of life and to take it equanimously. So, you see, Krishna also realized that although it was the battlefield, unless Arjun understands the absolute realm and the transactional or the practical plane, unless he separates the two, he will not be able to go ahead with the circumstance which had presented itself in his life. So all of us get entangled in the guthi of what is in front of us, but we all can remain absolutely suljha hua if we understand that when we take a birth, we are simultaneously in two planes of existence. So, the two planes are, what are the two planes? In fact, Advait Vedant talks about three planes. One is the absolute or the Paramarthik. You can write down the Paramarthik plane. The second one is the practical or the Vyavaharik plane. And the third one is the Pratibhasik or the illusory plane. What is the illusory plane? When we see a serpent on the rope, or when we see a mirage in a desert, or when we are dreaming and the dream seems so real, just like Raja Janak, who had dreamt that he had lost his kingdom and he had been exiled from his own kingdom, and then he woke up from the sleep, and then he came to know that that was a dream. But in the dream,
It is so real that he said, ये सच है या वो सच है. And what did Ashtavakra reply? ना ये सच है ना वो सच है, but हे राजन तुम सच हो, क्योंकि तुम दोनों को जानने वाले हो. ना ये सच है ना वो सच है. Neither the practical plane, this is also an appearance. But for it to be an appearance, it needs the foundation of the Brahma Tattva. It needs the foundation, like the appearance of the snake needs the foundation of the rope. Like the mirage in the desert needs the foundation of the desert. So, whatever we are experiencing on the practical plane, yesterday, in fact, Mamta had explained this point very well. She said that when any circumstance comes at her and it becomes too much for her to go through what is happening on the reality plane, on the practical plane, then she tells herself, all this is a movie that is playing on the screen, and I am the witness consciousness. This is not a make believe. The truth is that everything is happening on the plane of that consciousness. Consciousness is first there, in which the creation has happened, on which the creation has happened. So the ultimate truth is only the consciousness. So when Mamta is telling herself that I always remember that I am the witness consciousness, in fact, she is inviting the absolute truth to be with her, or that she is established in the absolute truth. देखिए, हम लोग कितना भी ये सब सुन लें, एक तो ये बात है कि अगर हम लाइफ के सर्कमस्टेंसेस को 4-5 4-5 तरीके हैं जो कि हम अपने मन को सुझाव दे सकते हैं. या एक तो ममता वाला है ही है जो कि बेस्ट है. फिर भी हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं कि प्रारब्ध के कर्म जो आते हैं हमारे ऊपर, उन्हें हम सोचें कि भाई इट इज अ पासिंग शो, इसलिए हम थोड़े से दिन के लिए इसको भोग लेते हैं. ये कुछ दिन का मेहमान है. इससे मेरी ग्रोथ हो रही है. देखिए, सेम सर्कमस्टेंस होती है. अगर हमारा नजरिया एब्सोल्यूट की तरफ का है तो हम क्या कहेंगे, इसमें मेरी प्रोग्रेस हो रही है, मेरी आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो रही है, मेरे कर्म कट रहे हैं, मैं थोड़ी हल्की हो रही हूँ, मेरी ग्रोथ हो रही है, मुझे अपनी कैपेसिटी का मालूम पड़ रहा है. इस तरह से जब हम उसको एक पॉजिटिव एंगल दे देते हैं, तब भी उसका दुख और दर्द हमसे मीलों दूर चला जाता है. हम उसके न दुख में फंसते हैं, ना उसकी पीड़ा हमको झेलनी पड़ती है. हमारी सहनशीलता बढ़ रही है. हम एट लास्ट ये सीख रहे हैं कि हमको दूसरों को जज नहीं करना है, अपने ऊपर अपनी नजर रखनी है. ये नहीं कि उसने क्यों ऐसा कर दिया, उसने क्यों ये कर दिया. दूसरे के प्रति शिकायत से हम भरे नहीं रहते हैं. अब हमारे अंदर जजमेंट कम हो गया है. हम ये मानने को तैयार हैं कि कहीं ना कहीं मेरे ही कर्म मेरे ऊपर लौट करके आ रहे हैं. इस सब तरीकों से हम उस पीड़ा से, उस दर्द से, उस कठिनाई के मोमेंट से हम बच करके निकल जाते हैं. और जैसे कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लगे पे लगे, मतलब लग ही जाती है. लेकिन अगर हम अपने एब्सोल्यूट ट्रूथ में टिके रहते हैं तो हमारे ऊपर वो एक लकीर भी नहीं आती है. हम्म? तो अद्वैत जो है वो इसका समाधान कैसे करता है? पहले तो हमको ये समझाता है कि एब्सोल्यूट प्लेन पर ब्रह्म ही सत है,
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म. But there seems to be something apart from Brahma. World is there full of living and non-living beings. There is a history. I am there. My body, mind, feelings, emotions, and circumstances are there. How can I just think of it as a dream? फिर अपनी गहराई में जाकर के हमको नजर आता है कि सपने में भी हमको वो सब बहुत रियल लग रहा था. जैसे कि देखिए, अगर मैं एक पैर को कोई अगर इस स्टेटमेंट को कहे कि ये तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये तो सपना है. देखिए, मैंने एक पत्थर को पाँव से धक्का लगाया, तो मेरे पाँव को भी चोट लगी ना. सपोज आई किक अ स्टोन, किक अ रॉक, तो मेरे पाँव को चोट लगी ना, वो दर्द तो मुझे हो रहा है ना. तो अगर हमने सपने में एक रॉक को ऐसे पैर मारा होता, तो सपने वाले पैर को भी दर्द होता ना उस सपने में. इसी तरह से हमको वो दर्द ये वेकिंग कंडीशन में होता है. ये वेकफुल, ये जो है ना, हमारा ये जो प्लेन है, द ट्रांजैक्शनल प्लेन, this happens in the period of wakefulness. This is to do with the wakefulness stage. तो एक फिजिसिस्ट बोला, तो इसका मतलब कि अगर आप सो रहे हो और मैं एक आग जला लूं और आपका हाथ उठा करके मैं उस आग के पास ले जाऊं या आग के अंदर झोंक दूं आपका हाथ, तो क्या आपका हाथ नहीं जलेगा क्योंकि उस समय तो आप सो रहे हैं. तो हम उस फिजिसिस्ट को कहेंगे कि देखो, जो ये शरीर है और जो तुम्हारी आग जल रही है वो सेम प्लेन पर है. तो क्योंकि वो सेम प्लेन पर है, इसलिए अगर तुम आग में मेरा हाथ डालोगे तो मेरा हाथ जलेगा, लेकिन मेरी विटनेस कॉन्शियसनेस में कोई जलाहट नहीं हुई. विटनेस कॉन्शियसनेस को आग जला नहीं. तो ये हमारे ऋषि मुनियों की बहुत बड़ी देन है, जो उन्होंने फाइनर एंड सटलर रेल्म्स ऑफ थिंकिंग पर पहुंच करके हमको ये बताया कि इस तरह से तुम अपने जीवन को दो प्लेन्स में डिवाइड करो, या और भी अगर सच्चाई पर रहना है तो तीन प्लेन्स में डिवाइड करो. एक एब्सोल्यूट या पारमार्थिक, दूसरा व्यवहारिक, और तीसरा प्रातिभासिक. दैट मीन्स जो सपने की बातें हैं. अब देखिए, हम लोग सब अपने जीवन में जितने भी कर्म करते हैं तो अपने आप को प्रसन्न करने के लिए करते हैं. मन की प्रसन्नता बुरे काम से भी मिलती है और अच्छे कर्म से भी मिलती है. भाग्यशाली वो हैं जो अच्छे कर्म करके प्रसन्नता प्राप्त करते हैं. अभागे वो हैं जो प्रसन्नता के लिए बुरे काम करते हैं. प्रसन्नता तो चली जाएगी, पर बुरे कर्म का परिणाम रह जाएगा. The result of the bad deeds which we had done in order to gain happiness, those bad deeds will always remain with us. So better we move our lives towards meritorious karma and get our happiness or satisfaction by doing the right karmas. क्योंकि जब हमको बुरे कर्मों का फल मिलता है तो बहुत लंबे समय तक हम लोगों को झेलना पड़ता है. इस बात को विवेकानंद ने बहुत आसान शब्दों में अमेरिका में समझाया. गुड गुड, बैड बैड, एंड नन कैन एस्केप द लॉ. बट far beyond
name and form is Atman ever free. आप लोग को लिखने हैं ये शब्द, मैं धीरे धीरे बोलूं. Good, good, bad, bad, and none escape the law. But far beyond name and form is Atman ever free. Know that, know thou art that, sannyasi bold. Know thou art that, sannyasi. Who are you? Far beyond the good and bad karma. There is an absolute reality ever residing in you. That's what he's saying. तो ये समझ लीजिए कि अपने कर्मों से कोई कभी बच नहीं सकता जब तक हम लोग अपने आप को एक शरीर मान करके चलते हैं, जब तक मैं मेरे में कर्तापन है, क्योंकि इसका जो करता है वो कर्मों का फल भोगता है. धर्म के अनुसार हम धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 सेक्शंस में हमारी लाइफ डिवाइड हो जाती. धर्म को आगे किस लिए रखा है? अगर तुमको कामना भी पूरी करनी हो, तभी भी मॉरली तुम अपनी कामनाएं पूरी करो. अगर तुमको अर्थ का उपार्जन करना है, इफ यू वांट टू प्रोग्रेस फाइनेंशियली एंड मटेरियली, कीप धर्म और मोरालिटी इन साइट. और जब तुम मोक्ष के साधक हो जाते हो, तब तो तुम्हारे लिए धीरे धीरे करके ये सब पीछे छूट जाता है. तो देखिए, लाइफ चार पहलुओं में डिवाइडेड है. उसमें धर्म सामने रख करके जब हम काम करेंगे तो हमारी लाइफ सुलझी हुई रहेगी. आदमी जितनी भी पॉपुलेशन है वो भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड होती. तो लोएस्ट कैटेगरी में कौन आता है? पामर. पामर का मतलब जो केवल अपने इंस्टिंक्टिवली जीता है, एनिमल इंस्टिंक्ट से जीता है, केवल अपने लिए हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए अपने कर्म करता है, उसको आगे पीछे का कोई ध्यान नहीं होता. जैसे कि suppose there's an alcoholic or a drug addict, so his life becomes a misery. He is living every day for that pleasure alone, with no thought of before and after. फिर दूसरी कैटेगरी के लोग जो मेटीरियलिस्टिक होते हुए भी अपने धर्म को, मोरालिटी को ध्यान में रखते हैं, केवल मेटीरियलिज्म के लिए ही जीते हैं. सो दे आर कॉल्ड सकाम कर्मी. पहले वाले पामर, दूसरे सकाम कर्मी, तीसरी कैटेगरी के लोग साधक. साधक are those who are spiritual seekers, actually practicing, अपनी साधना कर रहे हैं. जैसे कि हम लोग गुरुदेव की बताई हुई सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं, अपना समय सेवा में भी लगाते हैं. हम लोग अपने कदम उस ओर बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी वहां पर पहुंचे नहीं हैं. वो तीसरी कैटेगरी हो गई साधक. और चौथी कैटेगरी है सिद्धों की, या जो जीवन मुक्त हो गए हैं. बेशक उनको सिद्धियां बहुत कुछ हाथ नहीं आई हैं, लेकिन वो ब्रह्म तत्व को समझ करके अपने आप को एब्सोल्यूट तत्व के साथ जोड़ करके रखते हैं. ठीक है. अभी देखिए, इस जन्म में कोई बुरा काम मैंने नहीं किया, फिर भी मेरे ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है. कई बार हमको ऐसे देखने में मिलते हैं, वो लोग जिन्होंने इस जीवन में कुछ इतना बुरा किया ही नहीं है, लेकिन उनके ऊपर एक के बाद एक ऐसी डिफिकल्टीज आती है. तो वी एट्रीब्यूटेड टू पास्ट बैड कर्मास व्हिच आर नाउ शोइंग अप. देखिए, भगवान कृष्ण को भी
श्यामंतक मणि की चोरी में उनके ऊपर अपराध ठोक दिया गया कि इसी ने श्यामंतक मणि चुराई। उन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। तो ये सब भी इस प्रैक्टिकल प्लेन में होता रहता है। जो अपराधी है वो तो छूट जाता है, और जो निरपराधी है वो कोई गलत चीज में पकड़ा जाता है। उसके लिए क्या होता है, कुछ तो अपनी प्रारब्ध सामने आ जाती है, अच्छे कर्म सामने आ जाते हैं, और कुछ वकीलों की कृपा हो जाती है। वकील इतनी बढ़िया तरह से उसका केस लड़ लेते हैं कि अपराधी छूट जाता है और निरपराधी जो है वो पकड़ में आ जाता है। लेकिन एक बात ये है कि अगर वो इस समय छूट भी गया तो कभी न कभी वो इस शिकंजे में आ जाएगा, क्योंकि उसके बुरे कर्मों का फल उसको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए अब जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है और हमने इस जन्म में कुछ भी खराब नहीं किया है, तब हमको इस चीज का बेहद ध्यान रखना चाहिए कि हम नए कर्म और न बना लें। इस उसको गलत बात बोल करके हम अपने नए कर्मों का बही खाता न तैयार कर दें, नहीं तो हम इस चीज से निकलेंगे कैसे। भलाई इसी में है कि हम उसको चुपचाप बर्दाश्त कर लें और अपने ही कर्मों का फल मान लें। जैसे कि कोई राजनेता है, तो कई राजनेता हैं, जब वो हार जाते हैं कोई भी सीट तो वो स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, अब मैं ये सीट हार गया। होता है कि नहीं, कि भाई वो मान जाता है कि हाँ, लेट द बेटर पर्सन विन, लेट द मोस्ट पॉपुलर पर्सन विन, आई हैव लॉस्ट दिस। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो ये जो बैलेट बॉक्सेस जो थे ये गलत थे, ये मशीनरी गलत है, वो लोग मानते नहीं। तो अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने मान लिया, तब आपका आगे का और नया कर्म नहीं बनेगा। अब देखिए, राजनीति की बात पर हैं, तो एक अच्छी सी कोटेशन मेरे हाथ लगी थी, वो मैं आपको सुना देती हूँ। इन हसीनों की मोहब्बत दूर की अच्छी, ना इनकी दोस्ती अच्छी, ना इनकी दुश्मनी अच्छी। मतलब यहाँ बता रहा है, वो कवि बता रहा है कि पॉलिटिशियन से थोड़ा बच करके रहना ही भला है। ना इनकी दोस्ती अच्छी, ना इनकी दुश्मनी अच्छी, इनकी इनसे मोहब्बत दूर की अच्छी। इसलिए राजनीतिज्ञों से बच करके रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा जन्म का अम, इस जन्म का नहीं भोगते, पिछले जन्मों का भोगते हैं। जैसे कोई पोता पोती हुए, तो माँ बाप से उसकी शक्ल नहीं मिलती, लेकिन दादी से हूबहू मिलती है। तो थर्ड जनरेशन में आकर के वो वाली शक्ल वापस इसके ऊपर आई ना। इसीलिए 3 जन्म, 4 जन्म, 100 जन्म पहले के भी कर्म हम इस जन्म में भोग सकते हैं। इसलिए हमको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं तो इतनी अच्छी सीधी रास्ते चल रहा था, मेरे ऊपर ये क्यों आया। कभी ना कभी मैंने कुछ ना कुछ किया है। समझ। तो अपनी लाइफ सुलझी हुई रखने के लिए इस जन्म में हमको क्या करना चाहिए, कर्म ठीक करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमने कर्म ठीक किया तो हमारे ऊपर हम बुरे कर्मों का रिजल्ट आना बंद हो जाएगा। उससे हम कभी भी नहीं बच सकते। पुराना बही खाता पूरा हुआ या ना हुआ, नया तो तैयार हो जाता है ना। जरूरी नहीं है कि तुमको भगवान बही खाता दिखाएंगे कि फलाने जन्म का तुम अभी कर्म भोग रहे हो। भगवान नहीं दिखाते। भगवान भी अपने आप को बचा करके रखते हैं। वो तुमको बताते नहीं है कि इस कर्म का फल तुम अभी भोग रहे हो। जैसे कोई अगर, जैसे कि वी वांट दैट somebody should resign from the company, so we will ask him, we don't chuck him out, we will ask for his resignation letter so that we do not cultivate more dushmani with that person. You understand? और हमारे शास्त्र बताते हैं कि अगर तुमको मनुष्य जन्म मिल ही गया है, तो और कुछ कर्म नहीं करके तुम भक्ति की राह पकड़ो,
उसमें तुम्हारी लाइफ सुलझी हुई रहेगी, तुम्हारे नए कर्म नहीं बनेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब कोई संतान माता के गर्भ में होती है, तो वह ये संकल्प करती है कि जब मैं जन्म लेकर के संसार में आऊंगा, तो मैं तुम्हारा ही ध्यान करूंगा, तुम्हारा ही नाम लूंगा, मैं आपका ही नाम लूंगा। लेकिन यहाँ आकर के, क्योंकि ड्रामा ऑलरेडी छिड़ा हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं, अपना जो हमने भगवान के राज्य में हमने एक प्रण किया था कि मैं ये जन्म तुम्हारे लेखे करूंगा, वो बात ही भूल जाते हैं। दुनिया की चकाचौंध में हम फंस जाते हैं। लेकिन कई माएँ ऐसी होती हैं, जो बच्चे के अंदर ये संस्कार डालती हैं और वो बच्चे के लिए संकल्प करती है, ये जन्म उसका आखिरी जन्म होगा। जैसे माता मदालसा की लोरी, उसने क्या कहा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पार पाहि मुरारे। क्या बोलता है कि बार बार मुझे पुनरअपि जननम, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरण होता है, बार बार माता के गर्भ में 9 महीने तक मुझे कैद रहना पड़ता है। ये जन्म लेने के बाद ये कर्मों का जो खाता है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना दुस्तर है ये रास्ता कि हे कृष्ण भगवान, तू ही मुझे पार लगा सकता है। कृपया पाही पार मुरारे, आप ही मुझे इस जन्म से पार लगाएं। इस तरह से जब हम भक्ति की तरफ झुक जाते हैं, तो भी हमारा रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। एक माँ अच्छे संस्कार देकर के बच्चों का जीवन बना सकती है। देखिए, आज की जनरेशन पैदा होते ही रिमोट के बटन्स कैसे क्या-क्या शुरू से पैदाइश से ही वो जान जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ यही चीज करती आई थी जब वो पेट में था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाना सीख लिया था, उसके गर्भ अपनी माता के गर्भ में ही उसने सीख लिया, है ना? इसी तरह से आजकल के बच्चे बहुत इवॉल्व होते जाते हैं। माँ जो करती होती है, उनके जैसे कि खून में आ जाता है। वो बटन से घबराते नहीं है। जैसे हमारी जनरेशन तो बटनों से थोड़ा दूर रहती है। पता नहीं ये बटन दबा देंगे तो इसका क्या असर होएगा। लेकिन वो लोग बचपन से ही ये सीखे हुए रहते हैं। और ये भी देखा गया है कि जब बचपन में कोई बच्चा बहुत उद्दंडी होता है, तो बड़े होकर के वो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। क्योंकि उसके माता-पिता ने उसके ऊपर काम किया है, उसको सुलझाया है, उसको सही रास्ता दिखाया है। तो हम सबका ये उत्तरदायित्व होता है कि अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएँ और उसके ऊपर चलना सिखाएँ। और हम लोगों को नाउ एज साधक्स, व्हाट इज आवर responsibility towards ourselves? Every day we have to move a little, we have to progress on all three fronts. Which are the three fronts? The physical, the mental, as well as the spiritual. On all these three levels, we have to make a slight improvement every day. We should throw the lifestyle diseases far behind us. We should never be plagued by any diseases. What are the lifestyle diseases? Like arthritis, diabetes, cardiac problems. All these are, and cancer. All these are lifestyle diseases. So we have to conduct ourselves in such a way that the lifestyle diseases go far behind and we move away from them by leaps and bounds. And this can be easily accomplished if every day we make a little improvement on the physical, on the mental, and third, spiritual plane. On all the three planes, we have to make little improvement in our life.
आप लोगों को पिछली बार बताया था कि वात, पित्त और कफ जैसी चीजें भी पास ऑन हो जाती हैं। इसलिए हमको सचेत रह करके अपना जीवन बिताना है। इतना ही हमारे हाथ में है। यह जानिए कि पुरुषार्थ का बहुत बड़ा महत्व है। जो आज कर्म हम पर आया है वह घड़ी टल ही जाती है। मेहमान है, जैसे आई है वैसे चली जाएगी। हम कर्म बंधन से कैसे छूट सकते हैं? ज्ञान के द्वारा। बाय वेकिंग अप टू द रियलिटी, all the karmas get immediately nullified and they do not come because we are no more karta. कर्म का फल कौन भोगता है? जो अपने आप को कर्ता मानता है। लेकिन जो डिसॉल्व हो गया, जो रहा ही नहीं, जो जानता है कि मेरी जिंदगी अब उसके हाथ में है, वो खेवैया है इस नाव का, उसके कर्म होने बनने बंद हो और वो बहुत ही खूबसूरत जीवन मुक्ति का अपना बचा हुआ जीवन वैसे बिताता है। This very sansar becomes a Nandanvan. The Gyan is the most helpful in the midst of family life, personal problems, and the strifes and tensions of the business world, which is proved by how Krishna told the absolute truth to Arjun when he was in the battlefield. All the duty which comes upon us will be done, but our attitude towards it will be very different. So, this is how we have to conduct ourselves in life. So, here we have really covered up to Sutra 21 of the third chapter. And we have covered the two topics, return of the soul and the fate of evildoers. So I haven't gone into all those intricacies कि ये वाला hell में जाएगा और वो वाला, I found it quite redundant, and so I didn't cover it in that way. I just gave you a general overview of what our karma should be and what our attitude towards the circumstances that should. Okay.